So today we have a very special guest with us, Professor Dr. Ashwani Kumar Sir, Director of IMC Department at Sri Ram Sarup Memorial University. Sir, could you tell us about your journey? Like, what motivated you to take up a leadership role as the Director of IMC Department? जी मैम सर आप 2000 से अपना करियर स्टार्ट करते हैं जी आप मार्च में 2021 से 2025 तक प्रिंसिपल और प्रोफेसर भी रहे हैं लाइक वहाँ पे इतना एक्सपीरियंस था आपने इतने ग्लोबल इंडस्ट्री में भी काम किया है तो आप ट्रांसफर को भी चूज किए ओके सो सर आपको क्या लगता है कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में टॉप 3 स्किल्स कौन से हैं सीख लेनी चाहिए लाइक उनके करियर ग्रोथ के लिए ओके ओके सर आज के टाइम में क्या होता है कि काफी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पास डिग्री जो है उसकी परसेंटेज सीजीपीए काफी अच्छी होनी चाहिए तो आज के टाइम में ये मैटर करता है डिग्री ज्यादा होनी चाहिए स्किल अगर कोई स्टूडेंट ये आपसे पूछे कि सर मैं क्या चूज करूं तो आप क्या CGPA is important, but CGPA is not the only parameter for success in life. और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी मेरा ग्रेजुएशन रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा, जो भी मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल किया, आई वॉज एन एवरेज परफॉर्मर। मेरा वो 80% और 90% वाला अप्रोच कभी नहीं रहा। मैं वो 60 से 70% के बीच वाला ही स्टूडेंट। एसआरएमयू में काफी एग्जाम्स होते हैं लाइक इंटरनल टेस्ट हुआ और मिड टर्म हुआ, सेमेस्टर एग्जाम्स हुआ, तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते आईटी के लिए सबसे कॉमन एक्सक्यूज या रीजन क्या होता है अपने आप से सिग्नेचर के लिए? Now, this is sounding hilarious to me because a lot of students approach me for such issues. सर इवन एसआरएमयू जो भी बच्चे एलिजिबल नहीं होते कोई इवेंट होता है क्लब्स में बिजी हुए एक्टिविटीज में बिजी हुए उनके लिए अटेंडेंस का रिलीफ भी देता है लाइक वो 75 to 50% पे ऑटोमेटिक चला आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक बॉक्स पॉडकास्ट। I am Jesse Srivastava and here we talk about education management, career guidelines, student life and some real life experiences. So today we have a very special guest with us, Professor Dr. Ashwani Kumar Sir, Director of IMC Department at Sri Ram Sarup Memorial University, Barebanki, Lucknow. Thank you so much sir for joining us today. तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? Thank you so much, Jayashri, for giving me an opportunity to be a part of this very interesting podcast. And I'm really thrilled and enlightened to be a part of this. And now it's all over to you for your questions and possibly my answers. Okay. Sir, could you tell us about your journey? Like, what motivated you to take up a leadership role as the director of IMC department? Definitely, as far as my academic journey is concerned, Jayashri, I started my journey in the year 2000. Okay. And it's almost now 25 years into this field now. Although I served for 6 years in the industry also. Before joining the academics, I worked for 6 years with Tata Motors in their MIS department. And after that, I came into academics. And before joining this university as the director, I was serving as the principal of a business school in Kolkata, Globson Business School. It's a very premier institute. And it has collaborations with some international universities as well, including the Malaysian University of Science and Technology in Malaysia. And before moving over to Kolkata, I had served for about 8 years in Gulf as well. 4 years with the University of Muscat in Oman, and thereafter 4 years in Dubai with the American University. And prior to moving to Gulf in 2013, I was working with the Indian institutes and universities. And thereafter, since April 2025, I joined Sri Ram Sarup Memorial University at the position of director. And now I am working here since April. So, sir, आप 2000 से अपना करियर स्टार्ट करते हैं जी आप मार्च में 2021 से 2025 तक प्रिंसिपल और प्रोफेसर भी रहे हैं लाइक वहाँ पे इतना एक्सपीरियंस था आपने इतने ग्लोबल इंडस्ट्री में भी काम किया है तो आप ट्रांसफर को क्यों चूज किए? Very true. Yashri, Ram Sarup has a very, very beautiful legacy. Okay. They have been into this industry for more than 30 years now. This university has been established in 2012. Before that, they were working. In fact, before that, they were having a college at this Faizabad Road. Beautiful legacy. There is a very positive image in the society about Sri Ram Sarup Memorial University. And since I started my career in 2000, I have been continuously hearing about the positivities and the dynamism of this university.
and it was more or less a dream come true for me, even when they invited me for an interview. So I thought this would be a मतलब, best opportunity if I can get to work with this so progressive and dynamic university in this city. And I'm really pleased and honored that I am a part of this university now. ओके सो सर आपको क्या लगता है कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में टॉप 3 स्किल्स कौन से हमें सीख लेनी चाहिए लाइक उनके करियर ग्रोथ के लिए? ओके मेरे हिसाब से कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए करियर क्लैरिटी बहुत जरूरी है. ज्यादातर स्टूडेंट्स ये चैलेंजेस आजकल जो फेस कर रहे हैं वो करियर क्लैरिटी को लेके है. एक बार करियर क्लैरिटी हो गई उसके बाद स्किल्स और माइंडसेट तो इंसान उसी हिसाब से डेवलप कर लेता है. स्टूडेंट्स ये चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो हम लोगों को ज्वाइन करते हैं और उसी की वजह से वो अपने स्किल्स और माइंडसेट उस सही दिशा में नहीं ले जा पाते. एक बार उस बच्चे का करियर क्लियर हो जाता है कि उसे फाइनेंस की फील्ड में जाना है या उसे मार्केटिंग में जाना है या उसे एचआर में जाना है, तो वो काम हम लोग टीचर्स के लिए और हमारे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है उनको उस दिशा में ग्रूम करना. ये बच्चे बहुत डायनेमिक हैं आजकल के, जिसे हम लोग जेनजी कहते हैं. बहुत कमाल की ग्रास्पिंग पावर है इनकी. बस वो कैरियर क्लैरिटी न होने की वजह से ये लोग अपना समय जो है वो नुकसान कर लेते हैं. इसी वजह से हम लोगों के अब आप लोग देखिए जो भी हम लोग इस वक्त कोर्सेज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम लोग सेमेस्टर 1 में ही बच्चों की वो करियर काउंसलिंग शुरू कर देते हैं. बच्चे को कोर्स में आते ही 1 से 2 महीने के अंदर ही उसको ये क्लैरिटी हो जाए कि बचा हुआ समय वो सही दिशा में हम उसको ले जा सके. ओके सर आज के टाइम में क्या होता है कि काफी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पास डिग्री जो है उसकी परसेंटेज सीजीपीए काफी अच्छी होनी चाहिए. तो आज के टाइम में ये मैटर करता है डिग्री ज्यादा होनी चाहिए स्किल? अगर कोई स्टूडेंट ये आपसे पूछे कि सर मैं क्या चूज करूं, आप क्या एडवाइस देंगे? मेरा एडवाइस उसको होगा कि अपना स्किल एनहेंसमेंट करिए. आप ओके डिग्री तो डेफिनेटली आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप इस सिस्टम का पार्ट है. अगले 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आपने कोर्स एनरोल किया है तो डिग्री तो प्राप्त हो जाएगी आपको. लेकिन अगर आपने उस दौरान स्किल्स अपने नहीं आपने बेटर किए तो फिर जब आप एचआर मैनेजर के सामने बैठेंगे, आप जब इंटरव्यू देंगे, जो कैंपस प्लेसमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन जब आएंगी तो वहां आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ये हमारे बहुत सारे बच्चे ये चैलेंजेस फेस करते हैं और मैंने ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहा है नेशनल और इंटरनेशनल, मैंने वहां पे देखा है कि एवरेज सीजीपीए वाले बच्चे जो दे हैव बीन बेटर परफॉर्मर्स. रीजन बीइंग कि वो सीजीपीए वाले एरिया में तो जो मेहनत करते हैं सो करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्टेज फोबिया ओवरकम करने में वो जो मेहनत करते हैं उसका उनको बहुत एडवांटेज मिलता है जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने जाते हैं और अपने आप को वहां पर पुट करते हैं फॉर प्लेसमेंट. तो एज फार एज माई माइंड सेट इज कंसर्न, ऑल्दो सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट बट सीजीपीए इज नॉट द ओनली पैरामीटर फॉर सक्सेस इन लाइफ. और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूं. मैंने अपने जीवन में जो भी मेरा ग्रेजुएशन रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा, जो भी मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल किया, आई वॉज एन एवरेज परफॉर्मर. मेरा वो 80% और 90% वाला अप्रोच कभी नहीं रहा. मैं वो 60 से 70% के बीच वाला ही स्टूडेंट रहा. आपके पेरेंट्स कभी ये प्रेशर या फोर्स नहीं किए कि लाइक मैं तुम्हारे पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा सीजीपीए भी 9 सीजीपीए आना चाहिए, 10 सीजीपीए आना चाहिए? अगर बिल्कुल लाइक कोई पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपने क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल यही सजेस्ट करेंगे जो मैंने अभी पहले भी कहा और मैं दोबारा उसको रिटरेट करूंगा मैं जयश्री, कि सीजीपीए इज नॉट द ओनली पैरामीटर फॉर सक्सेस इन लाइफ. सीजीपीए बिल्कुल जरूरी है, आपका ठीक ठाक सीजीपीए हो, लेकिन उसके साथ साथ स्किल एनहांसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत जरूरी है, खास करके कॉमर्स और मैनेजमेंट की फील्ड में. ओके सर प्लेसमेंट में जो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं लगता है तो उसकी जी. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कॉलेज की या स्टूडेंट की? इसकी रियलिटी क्या है? टू बी वेरी फ्रैंक जयश्री, इसके लिए मैं स्टूडेंट को ही जिम्मेदार मानता हूं और उसका जो भी कारण है मैं उसको ऑलरेडी उसका फेज 1 मैंने आपसे ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है कि जब तक देखिए
कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जब आता है हमारे यहाँ पर, तो हम उसको अपने बच्चे उनको ऑफर करते हैं। वो उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरव्यूज के लिए और इस तरह की टॉक्स के लिए बुलाते हैं। हम्म, उनके पास वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन वो अच्छे बच्चों को ले जाते हैं यहां से। और अच्छे बच्चों का क्राइटेरिया जो है, उनका कई सारे पैरामीटर्स पे बेस्ड है। सीजीपीए इज ओनली जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट। अब अगर वो बच्चा जो है कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है, अगर वो बच्चा जो है उसकी स्किल एनहांसमेंट उसने 3 साल के दौरान अपना अच्छा कर लिया है, चाहे वो कंप्यूटर स्किल्स हो, चाहे आजकल एआई की स्किल्स वगैरह हो, उन बच्चों को प्लेसमेंट जल्दी मिल जाता है। कुछ बच्चे जो सिर्फ एक ही दिशा में मेहनत करते हैं कि खाली सीजीपीए अच्छा कर ले, 8.5 कर ले, 9 कर ले, उनको ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा। अच्छा सीजीपीए दिखाना बस बस सिर्फ इसी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करते हैं जैसे वो लोग। सर जॉब जो भी बच्चे यूजी या पीजी के बाद जॉब करने जाते हैं उसके लिए क्या इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है? लाइक उनके रेज्यूमे में अगर इंटर्नशिप नहीं मेंशन है तो जॉब नहीं मिलेगी? जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप इंटर्नशिप का इंपॉर्टेंस बच्चों को हम लोग ये इंटर्नशिप पे जाने से पहले समझाते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप वाकई क्यों जरूरी है और करिकुलम का हिस्सा वो क्यों रखा गया है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि हम अपने बच्चे को 2 से 3 महीने के लिए किसी इंडस्ट्री में भेजते हैं, हम्म, और उसको इंडस्ट्री में भेजने का मकसद यही होता है कि जो हमने उसको पिछले 1 साल में या 1.5 साल में क्लास में पढ़ाया है, वो उस चीज को वहां जाकर के प्रैक्टिकली देखे और वो उस चीज को वहां इंप्लीमेंट करे और सीखे। सर कई स्टूडेंट क्या होता है जब इंटर्नशिप करना होता या उन्हें फैकल्टी बोलती है इंटर्नशिप करो, फोर्सफुली ही बोलती है तो वो उनके लिए अच्छा है। जी। लाइक वो इंटर्नशिप में ऑनलाइन क्या देखते हैं कि मैं कोर्सेज लोगों को भेज दूंगा, कोर्सेज सप्लाई कर दूंगा, वो कोर्सेज खरीद लेंगे, मेरा स्टाइपेंड बनेगा पर कोर्सेज का। तो ये इंटर्नशिप सही है बच्चों के लिए? लाइक इस टाइप की इंटर्नशिप या प्रॉपर एक इंडस्ट्री में कंपनी में करनी चाहिए? मेरा अपना वर्जन इस केस में यही है कि इंटर्नशिप की जब हम बात करें, अ स्टूडेंट शुड बी एक्सपोज्ड टू रियल टाइम वर्क इन इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री में जाए, वो इंडस्ट्री में जाए और उस चीज को वहां जा करके वो देखे और सीखे। हम्म, मैं इस वजह से आपसे ये बात कह पा रहा हूं। मेरी इस वक्त की जो भी मेरी करियर की मेरी लाइन रही है अब तक, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे 2004 के पास आउट स्टूडेंट्स, मेरे 2005 के पास आउट स्टूडेंट्स आज बहुत ही सीनियर लेवल पोजीशंस पे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। और ये वही स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनकी जर्नी रिकॉल करता हूं उस दौरान की, आई हैव सीन देम वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल विद द कंसर्न्ड इंडस्ट्रीज। और वही बच्चे आज बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, राइज किए हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग प्राउड टू मी एंड टू अदर फैकल्टी मेंबर्स हु taught them at that time. That is why the only and only suggestion that I give to my students in the class itself कि please go for a real time internship and do them as much as possible. अगर कोर्स कहता है कि एक करें तो आप प्रयास करें कि आप 2 जरूर, कोर्स कहता है 2 करें तो आप 3 जरूर करें, सो दैट यू आर एबल टू प्लेस योरसेल्फ बेटर देन द अदर्स इन लॉट। कंपनी सीजीपीए जैसा मैंने पहले भी कहा, वो सिर्फ एक पैरामीटर है। जब आप इंटर्नशिप करके आते हैं और अपनी सीवी में लिखते हैं, वो एक अट्रैक्टिव एरिया होता है सामने बैठे हुए एचआर मैनेजर के लिए। अगर आप जियो में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं अपने पास्ट स्टूडेंट का। उसने जियो में जॉब अप्लाई किया और उसने इंटर्नशिप एयरटेल में की हुई थी। अब आप सोचिए कि जियो मैनेजर ने उसकी बाकी सीवी जो है बिल्कुल अलग कर दिया। उसने कहा मुझे ये बता दो कि तुमने एयरटेल में क्या सीखा था। दैट वॉज अ ब्रेक थ्रू फॉर दैट एचआर मैनेजर ऑल्सो। इस वजह से इंटर्नशिप्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि यू नेवर नो कि फाइनली जब प्लेसमेंट्स होंगे तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ये तो किसी को नहीं पता। ये तो ओनली द प्लेसमेंट डायरेक्टर नोस, और वो रैंडमली किसको वहां भेज देंगे। एंड सिंस अ स्टूडेंट हैज टू स्टार्ट हिज और हर करियर, तो करियर चॉइसेस शुरू में जो है वो लिमिटेड होती हैं। हम लोग को जो चॉइस मिलती है वो हम लोग ले लेते हैं, देन वी कैन मेक अ स्विच लेटर ऑन बेस्ड अपॉन अवर ओन लाइकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस। स्टूडेंट को तैयार होना पड़ेगा, और इंटर्नशिप इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सो लाइक जो बच्चे प्लेसमेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनका प्लेसमेंट भी लग जाता है अच्छी कंपनी में। बट कई स्टूडेंट्स का, ये मैंने खुद ओपिनियन देखा है लोगों का, लोगों के बीच रह के, ग्रुप्स में रह के, कि ठीक है मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, मैं यूजी के बाद डायरेक्ट पीजी करूंगा, तो मैं प्लेसमेंट मेरा लग भी गया तो मुझे नहीं चाहिए। क्या ये सही चीज है?
लाइक जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं हाँ, वहां पे ये चलता है कि आप यूजी के बाद आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पीजी करने के लिए। जी। तो ये इंडिया में क्यों नहीं है, और अगर है तो बच्चों को पता क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया में ये क्यों नहीं है, ये बता पाना तो थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, जैसे रीजन भी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा है इंडिया में कि हम पीजी के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। हम्म। यहाँ तक कि एनईपी में भी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है कहीं भी। हाँ, लाइक जो बच्चे अगर यूजी के बाद डायरेक्ट जाके जॉब करते हैं तो अगर पीजी करेंगे, पीजी के बाद जो उनका जॉब लगता है फाइनल जॉब, जी। उसमें यही पूछा जाता है कि आप यूजी के बाद पीजी क्यों नहीं किए, या आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे फालतू चीजों पे, आप कैट की जी। प्रिपरेशन कर रहे थे या नहीं। जी। तो ये सब चीजें एक स्टूडेंट के लिए कितना हार्मफुल है। देखिए, मैं फिर आई गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, करियर क्लैरिटी। जो करियर क्लैरिटी का जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये क्योंकि इंडिया में सिचुएशंस बहुत डायनामिक है एज कंपेयर टू दी अदर वर्ल्ड। हम्म। बाहर में अगर मैं अपने अपने एक्सपीरियंस की बात मैं करूं, गल्फ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो गल्फ में नौकरियां ज्यादा हैं और कैंडिडेट कम हैं। वहां पर एक जो भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब इज वेटिंग फॉर देम। और इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी द पर्सन हैज टू फाइट फॉर हिज और हर एम्प्लॉयमेंट। तो सिचुएशंस फर्क है, इस वजह से डायनामिक्स जो है फर्क है। लेकिन उसके ये कहने के बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा कि करियर क्लैरिटी हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर अमंग दी स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको जॉब लेना उनके लिए मजबूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली डायनामिक्स। उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में मेरा सजेशन जो स्टूडेंट्स को रहता है वो इसी तरफ रहता है कि करियर क्लैरिटी रखो, एजुकेशन फिनिश कर लो, एजुकेशन फिनिश कर लो। इफ यू आर एमिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फिनिश इट एंड देन एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो मतलब कई सारे स्टूडेंट हैं जो लोग कहते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि लाइक ठीक है मैं यूजी लास्ट ईयर में हूँ या पीजी लास्ट ईयर में हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए जॉब के लिए, अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए, तो वो कॉल सेंटर में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत इम्पैक्टफुल है उनके ऊपर, या फिर ये बहुत ही नेगेटिव वे में ले जाएगा उन्हें? अनफॉर्चुनेटली ये उनको नेगेटिव है। अगर वो कॉल सेंटर वगैरह या कुछ इस तरीके की पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज पिक करते हैं, कंपनी है तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये उनको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। अगर उनको बीपीओ उनका कोई ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। no. बात वहीं पर अगेन इट विल कम बैक टू द सेम थिंग, करियर क्लैरिटी। कि अगर वो बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं या कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं इन द लास्ट सेमेस्टर और इन द लास्ट ईयर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे व्हाटसोएवर। इनफैक्ट उनका जो जो सेमेस्टर जो चल रहा होगा वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट करेगा। कल को अगर कोई बड़े कंपनी में वो अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उन्हें, देयर विल बी नो सच बेनिफिट। कॉल सेंटर में काम करके या बीपीओ में काम करके अनफॉर्चुनेटली सी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो अंडरस्टैंड दीस थिंग्स नाउअडेज। आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर के सामने बैठे हैं और आप बता दें कि मैंने जो है लास्ट सेमेस्टर में इसमें इतना काम किया है, और ऑब्वियसली अगर वो कॉल सेंटर है तो बीपीओ है तो उसका पैकेज भी वैसा ही रहा होगा। 10 to 12 ओके। तो हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प इन करियर बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन इटसेल्फ। सर स्टूडेंट्स पे काफी ज्यादा स्किल्स का डिमांड आप कर रहे हैं, तो जो जिस स्टूडेंट के अंदर कई सारी एक्टिविटीज हैं लाइक डांसिंग या फोटोशूट या सिंगिंग, तो रामस्वरूप उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज या कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है उनके करियर ग्रोथ के लिए? हम लोग इस पे दो पैरामीटर्स पे बात करेंगे जयश्री। एक उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को एनहांस करने के लिए, दूसरा उनकी एकेडमिक स्किल्स को एनहांस करने के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर अगर स्किल्स की मैं बात करूं तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 20-22 क्लब्स हैं। एग्जैक्टली। है ना? तो वो सुरझनकार क्लब हैं और इस तरीके के बहुत सारे क्लब्स हैं जहां पर बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो उनमें के अंदर स्किल्स है उसको हम लोग एनहांस करते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हो। बच्चे उन क्लब्स में एनरोल हो जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के थ्रू और वो उसमें अपना परस्यू करते हैं अपना अपना स्किल फर्दर। इन्हीं सब क्लब्स पे यूज करके हम जो हमारे जो एनुअल इवेंट्स होते हैं लाइक अनुभूति होता है या इस तरह के और भी इवेंट्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर इन क्लब्स का बहुत ही एक एक्सटेंसिव यूसेज होता है।
तो उन एरियाज में हमारे बच्चे जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं। जहां पर हम एकेडमिक स्किल्स की बात करते हैं, अभी हाल में ही इनफैक्ट पिछले करीब 3-4 साल से SRMU हैज बीन वेरी रिग्रेसली वर्किंग ऑन होनिंग दी एकेडमिक स्किल्स ऑफ दी स्टूडेंट्स एज वेल। हमारे देखिए अब बहुत सारे कोर्सेज जो हैं हमारे, वो अब इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड हो गए हैं। जैसे कि हमारे कुछ यूजी और पीजी कोर्सेज जो है वो LNT के साथ इंटीग्रेट हो गए हैं। LNT इज अ वेरी वेरी प्रीमियर कॉर्पोरेट इन द मार्केट नाउ डेज। कोर्स इंटीग्रेट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि हम और हमारे टीचर्स जो हैं वो तो उनको एकेडमिक स्किल्स देते ही हैं क्लास में, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर उनको एग्जैक्टली बता पाता है कि कॉर्पोरेट्स में क्या चल रहा है उन एरियाज को लेकर के। अब हर सेमेस्टर में अगर LNT का एक एक्सपर्ट उन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने आ रहा है, आप समझ पाएंगे इस चीज को कि इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कि अगर हम AI की बात करें, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें, तो अगर LNT वाला एक्सपर्ट अगर बता रहा है तो दैट मीन्स इट इज द लेटेस्ट एंड द बेस्ट इन द मार्केट। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन SRMU फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स नाउ। और हर साल इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही वैल्यू एडेड अचीवमेंट्स भी है हमारे स्टूडेंट्स को लेकर के, और जिसका स्टूडेंट्स को बहुत एडवांटेज मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके स्किल एनहांसमेंट्स को लेकर के। जैसे सर एक टाइम पे आप स्टूडेंट थे और आज आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो तब में और अब में आपको क्या चेंजेस लगता है वेरी वैलिड जो क्वेश्चन फॉर जो मी। अभी तक आपने ना बताया हो? सबसे बड़ा चेंज तो टेक्नोलॉजी का है। कि- हम लोग वो वाले हैं जो चॉक एंड टॉक वाले हैं, चॉक एंड टॉक वाले माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, हम्म, और आजकल तो सब कुछ जो है इट्स अवेलेबल ऑन अ स्वाइप, ऑन योर मोबाइल फोन, योर टैबलेट और ऑन द लैपटॉप, वट एवर यू आर यूजिंग। तो वो एक एडवांटेज मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं मिला। शायद मिला होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट ठीक है, आजकल के स्टूडेंट्स के पास टेक्नोलॉजी है। और ये मेरी एक सिंसियर एडवाइस भी है उन सारे स्टूडेंट्स को, दैट द टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज्ड इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे। nice point. यस, इट हैज टू बी यूज्ड इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे, कि वो उसका बेनिफिट उठाएं रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द डार्कर साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। और बहुत अच्छा है जो टेक्नोलॉजी का यूज है, जो आजकल मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को यूज करते हुए, चाहे वो AI हो, ChatGPT हो, या और भी कुछ इस तरीके के डेटा एनालिटिक्स के टूल्स हो जो हम लोग के समय में नहीं मौजूद थे, वो आजकल बच्चों को मिल जाता है, स्टूडेंट्स को मिल जाता है, एंड सम ऑफ देम आर ब्यूटिफुली वर्किंग ऑन दैट। और ये मैं उन बच्चों की फॉर्चुनेट इनफ टू सी कि बहुत सारे बच्चे जो समर ट्रेनिंग्स अपनी करके आते हैं, मैं भी कुछ बच्चों को गाइड करता हूं उस दौरान, उनके द्वारा की गई जो डेटा एनालिसिस का जो पोर्शन है, दैट इज एग्जेम्पलरी। ऑल्दो एक आध दो बच्चों को मैंने उस केस में गाइड भी किया ऑन अ वेरी लाइटर साइड और ह्यूमरस साइड, कि भाई स्पेलिंग चेक कर लिया करो। एक बार टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज करते हैं, अच्छी बात है, ChatGPT कम्स टू रेस्क्यू। हाँ, लेकिन बहुत सारी जगह पे आप लोग उसको एक बार रीड जरूर करा करें। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैं उस समय की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में देख पा रहा हूं। दूसरा जो मैंने मेजर डिफरेंस देखा है, जो मैंने अभी पास में भी शेयर किया आपसे थोड़ी देर पहले, कि हम लोग के जमाने में कॉर्पोरेट्स का इंटरवेंशन या इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड वाला जो पार्ट था वो मिसिंग था। वी वर टोटली अनएक्सपोज्ड टू सच थिंग्स। आजकल के स्टूडेंट्स को वो एक बहुत ही ह्यूज ह्यूज एडवांटेज मिल रहा है, एटलीस्ट विथ प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक यूनिवर्सिटीज लाइक SRMU। Exactly. अब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहां इस तरीके का कोई भी एक्सपोजर अनफॉर्चुनेटली नहीं था। तो हमें तो जो हमारे टीचर बता देते थे या जो उस दौरान बुक्स में लिखा होता था वही एक्सपोजर था। स्टूडेंट्स nowadays are really benefited from such exposures and from such technology tools, and I would request and advise all my students to humbly use the better part of the technology for their career advancement. सर अभी क्या होता है, जो स्टूडेंट यूजी कर रहे होते हैं लाइक कॉमर्स और मैनेजमेंट कोर्स में, तो ये जरूरी है कि वो कैट के थ्रू ही एमबीए करे तभी उनका अच्छा पैकेज लगेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा? लाइक वो नॉर्मल कॉलेजेस से करके भी अच्छा पैकेज ले सकते हैं? ऑब्वियसली क्यों नहीं ले सकते हैं। देखिए, कैट डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट,
यस सर। कैट को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में, बट दैट डजंट मीन कि बाकी बच्चे जो हैं वो करियर प्रोग्रेशन नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हाल कुछ समय पहले मूवी आई थी 12वीं फेल, 12th यस 12th सर। फेल करके। आपने देखा उस केस में कि कहां से वो बच्चा उठा और कहां तक पहुंचा है। मोटिवेशन बहुत जरूरी। मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। कैट एक प्लेटफॉर्म है, अग्री, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जिनको मिल पाता है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल पाता है, जो प्लान बी है वो जरूर बच्चे इंप्लीमेंट करें लाइफ में। बहुत सारी अच्छी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे अच्छे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां पर आप अपनी पढ़ाई परस्यू कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ वेरी वेरी ब्रिलियंट ग्रोथ। और मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा ना भी एग्जैजरेट करूं इस चीज को, एसआरएमयू से जो बच्चे अपना करियर पाथ आगे लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पे उन बच्चों को जो एक्सपोजर मिल रहा है एकेडमिकली और टुवर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, इट इज टू गुड। मैं आपसे बहुत ही ऑनेस्टली ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मैंने देखा और अब एसआरएमयू में जो मैं वर्क कर रहा हूं, I am finding SRM better at many, many places as compared to the international universities that I have served. यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स, हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है, वो बच्चों की ग्रोथ में एक पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है। पर्सनल इंटरेस्ट आई मीन कि एक एक बच्चे का केस टॉप मैनेजमेंट जो है उसको देखता है, उसको कंसिडर करता है, हम लोग उसको आगे लेकर के जाते हैं। लाइक फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है उसे हटाना। बिल्कुल हटाना। और अगर किसी बच्चे का कोई जेन्युइन इश्यूज है तो वो हम लोग केटर करते हैं। अभी इसी लाइन में मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। अभी आजकल भी हमारे कुछ बच्चों की फोकस ग्रुप ट्रेनिंग चल रही है फॉर बीबीए थर्ड ईयर एंड फॉर एमबीए सेकेंड ईयर, और ये सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि उन बच्चों को एग्जैक्टली ये पता चल सके कि इस वक्त इंडस्ट्री में किस चीज की डिमांड है। और हमारे जो ये ट्रेनर्स हैं जो आ रहे हैं, उनका प्रोफाइल जो मैंने देखा है, दे आर टू गुड, दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। सर कॉमर्स आईएमसी डिपार्टमेंट में पर ईयर कितना परसेंट प्लेसमेंट ऑलरेडी लग जाता है? Like, कितने परसेंट प्लेसमेंट स्टूडेंट्स ले जाते हैं? वेल, इसका एग्जैक्ट डेटा तो शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास अभी वो डेटा अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन मैं Okay, एक ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो अराउंड 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स okay, डू गेट प्लेस्ड इन गुड ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लेस नहीं अगर हो पाते हैं तो वो उनके काफी सारों के स्वयं के अपने डिसीजंस होते हैं। जैसे कि अगर कोई यूजी का बच्चा है, वो प्लेस अगर नहीं हो रहा है तो उसने ऑलरेडी उस चीज का अंडरटेकिंग दे दिया होता है कि ही और शी वुड बी परसुइंग फॉर हायर एजुकेशन। अच्छा, पीजी के केस में जहां तक मामला है, हम लोग का अपना एमबीए का जो बैच रहता है वो थारोली प्लेस्ड होता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम जेन्युइन इशू विद द कैंडिडेट। सर एमबीए परसुइंग करते समय क्या अगर आप वर्क फ्रॉम होम स्टूडेंट जो भी अप्लाई करते हैं या कर रहे होते हैं उससे उनके रेज्यूमे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है या फिर वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है उनके लिए? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो है, अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट दिस वर्क फ्रॉम होम वाला जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है, somehow I don't अंडरस्टैंड। I don't understand this and I don't even encourage this. See, the exposure that you go, in fact, that you get when you go and work for an organization, when you face people, when you give a presentation standing in a boardroom, you face 10 or 12 seniors there, you give a presentation there, you work with your colleagues there, that cannot be replaced. ये लोग मिस करते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर। उनका वो जो एक पर्सनैलिटी एनहांसमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही प्रेफर करता हूं, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट डेकेड of the experience that you get, you should go and work in person. ओके सर लाइफ में जो भी क्लासरूम में पीपीडीज होते हैं या लाइव प्रोजेक्ट्स फैकल्टी करवाते हैं स्टूडेंट से, तो क्या ये प्लेसमेंट में या करियर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है? Terribly. They work like anything.
क्लासरूम प्रेजेंटेशंस का एक सबसे ह्यूज ह्यूज एडवांटेज जो स्टूडेंट्स को मिलता है, जो वो मुझसे बाद में भी आके शेयर करते हैं नौकरी पा जाने के बाद भी, कि सर वो जो प्रेजेंटेशन किया था उससे स्टेज फोबिया मेरा खत्म हो गया था। प्रेजेंटेशन से उनको क्या हासिल हुआ एकेडमिकली, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर जयश्री, लेकिन स्टेज फोबिया ये एक मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ में। वो खड़े होकर के जब बोलते हैं उनके हाथ और पैर शेक करते हैं, और जब इनको दो चार इस तरह के एक्सपोजर मिल जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के क्लास में या स्टेज पे खड़े होकर के बोलने में, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में या किसी फेस्ट में, तो उनके पर्सनालिटी में एक बड़ा बढ़िया निखार आता है, जिसे हम लोग कहते हैं। वो कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ आई कैन स्पीक, नाउ आई कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। दैट इज व्हाई वी कीप प्रेजेंटेशंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। सर अटेंडेंस वर्सेस लर्निंग, इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? I would like to join the two. Attendance एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो है ही है, विच वी कैन नॉट डू अवे। रीजन बीइंग कि अब हम लोग यूजीसी के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, वेयर इट इज सेड दैट कि 75% अटेंडेंस जो है वो अनिवार्य। ये तो एक इसका लीगल एस्पेक्ट हो गया कि भाई अनिवार्य है, तो हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स को आप आइए। लेकिन मैं आपसे ऑन दी कॉन्ट्रेरी ये चीज पूछना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि जो आएगा नहीं वो सीखेगा कैसे, लर्निंग कैसे होगी। हम जब सेल्फ लर्निंग की बात जैसे आपने मुझसे की, सेल्फ लर्निंग इंसान कितना कर सकता है? ये मोस्टली स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन जी। आपने नोटिस किया होगा आसपास के स्टूडेंट जिनका अटेंडेंस नहीं कंप्लीट होता, वो बहुत ही ज्यादा वो लाइक मेरा अटेंडेंस क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं आ रहा, ठीक है मैं पढ़ तो रहा ना, मैं नंबर ले आऊंगा वगैरह, ये सब एक्सक्यूज होता है। नंबर ले आएंगे, मैंने आपसे शायद आई वुड टेक यू बैक अगेन टू दैट सेम जर्नी कि सीजीपीए जो इट्स जस्ट वन। अब जो बच्चा नहीं आ रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं, उसने ये ट्रेनिंग्स मिस की होंगी फोकस ग्रुप की। जो बच्चा नहीं आ रहा है वो क्लास के प्रेजेंटेशंस मिस करेगा। जो बच्चा नहीं आ रहा है वो हमारे इनोवेटिव टेस्ट जो हैं वो मिस करेगा। अब जब वो इतना कुछ मिस करेगा तो अपने बाकी काउंटर पार्ट से वो पीछे हो जाएगा। और ये पता है कब रिफ्लेक्ट होगा सबसे ज्यादा? अगेन जब वो बैठा होगा एचआर मैनेजर के सामने। एचआर के पास तो 10-15 सीवी 20 सीवी होएगा, and then he or she will definitely shortlist those people who are confident enough in speaking, who are confident enough in body language, who are confident enough in presenting themselves. जो घर बैठ के सेल्फ लर्निंग कर रहा होगा, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड्स उसमें मिसिंग होंगे ही होंगे। एसआरएमयू में काफी एग्जाम्स होते हैं, लाइक इंटरनल टेस्ट हुआ और मिड टर्म हुआ, सेमेस्टर एग्जाम्स हुआ, तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते आईटी के लिए, सबसे कॉमन एक्सक्यूज या रीजन क्या होता है उन्हें आपसे सिग्नेचर के लिए? So this is sounding hilarious to me because a lot of students approach me for such issues. Generally जो students reasons देते हैं they are medical in nature. वो उनके स्वयं का कुछ मेडिकल इशू रहता है या उनके किसी बहुत ही क्लोज वन का कोई मेडिकल इशू रहता है जो वो ले करके आते हैं। ऑल्दो आई से कि सम ऑफ देम आर जेन्युइन और हम लोग उनको कर भी देते हैं। बस इस केस में और मैं क्या कहना चाहूंगा आपसे कि बस मेडिकल इश्यूज ही रह पाते हैं। मैक्सिमम बच्चे अटेंड करते हैं, मैक्सिमम अटेंड करते हैं। कुछ जो नहीं कर पाते हैं वो यही इश्यूज के तहत है और हम लोग मैक्सिमम को जो जेन्युइन केसेस है उनको हैंडल भी करके एंड वी गिव देम अ सॉल्यूशन। और उसका सॉल्यूशन का हम लोगों ने एक और भी रास्ता बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं और वो होता है मेकअप एग्जाम का। उसमें भी उनको हम अपीयर करा देते हैं कि वहां पर उनका लॉस ना। और इस केस में मैं एक चीज आपको और ऐड करना चाहूंगा जो कि एसआरएमयू में बहुत ही यूनिक है, जो मैंने इनफैक्ट किसी भी नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में या इवन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखा है, जहां पर इंटरनल इवैल्यूएशन को एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से ज्यादा वेटेज दी जा रही है। दिस इज अ वेरी वेरी peculiar and a very very optimistic approach towards career enhancement of students. ये है एसआरएमयू में ये, And I really praise this. I'm really, in fact, really hats off to the top management for implementing this in this university. इसका बच्चों को थोड़ा सा एक प्रेशर जरूर फील होता है उस दौरान
लेकिन आप ये देखिए कि उन बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है उस इंटरनल इवैल्यूएशन के थ्रू, दैट इज इनॉर्मस. इन द लास्ट 6 months आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने इनोवेटिव टेस्ट्स जो में जिन बच्चों ने तैयारी की और उसमें जो अपीयर हुए हैं, उनमें जो बच्चों ने प्रेजेंटेशंस की हैं या उनमें जो बच्चों ने जो रिपोर्ट राइटिंग की हैं, those things they have made a very very positive impact and increase in the confidence of the students. सर इवन एसआरएमयू जो भी बच्चे एलिजिबल नहीं होते, कोई इवेंट होता है, क्लब्स में बिजी हुए, एक्टिविटीज में बिजी हुए, उनके लिए अटेंडेंस का रिलीफ भी देता है. लाइक वो 75 to 50% पे ऑटोमेटिक चला आता है. हमने आपसे वही बात अभी, जो जेन्युइन केसेस हैं उनको हम करते हैं कंसिडर, और पूरी तरीके से हम लोग भी इस पर हैं कि स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम फोर्स्ड एरर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट. वहां पे हम लोग उस केस में फिर स्टूडेंट से कहते हैं कि वो मेकअप के लिए जाए, और या फिर उसको थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ये प्रोवाइड करता है. लाइक आप दे दीजिए कंपनसेटरी, लिख के आपको पासिंग नंबर मिल जाएगा. In nutshell, we are both hot and cold as far as these areas are concerned. और hot and cold भी सिर्फ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, हम लोग का उसमें कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है. SRMU is doing all these activities just for making and shaping the career of our students, कि हमारा स्टूडेंट जब बाहर जाए तो he or she should stand apart. Internal evaluation plays a very very vital role, and hats off again to the university for implementing this. सर अभी तक एसआरएमयू में ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप लाइफ लॉन्ग याद करें, या फिर किसी स्टूडेंट से रिलेटेड फनी वे में और मोटिवेशनल वे में? वैसे बच्चे सुनना चाहेंगे कि फनी वे में ही हो. It's on a hilarious side, in fact. I think before that, I joined this university in April 2025, और मैंने ऑड सेमेस्टर में क्लासेस लेना शुरू किया था फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स. सो आई वाज अलॉटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए टीचिंग दैट. इनिशियली चूंकि वो मेरा पहला इंटरैक्शन था, तो जब मैं क्लास में गया तो मैंने अपना जो भी सब्जेक्ट था पढ़ाना शुरू किया. तो दी एमबीए स्टूडेंट्स पढ़ाया मैंने उनको, और बच्चे पढ़ते रहे मेरे से 1 घंटा. एंड एट दी एंड जब वो लेक्चर खत्म करके जब मैंने बच्चों से अटेंडेंस ली और अटेंडेंस रजिस्टर जो मैंने निकाला और बोलना शुरू किया, तो बच्चों ने बताया कि सर ये जो टॉपिक आपने टेकअप किया था ये बीबीए के लिए. ओके. आई कुड नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड कि मैंने एग्जैक्टली जो है वो क्या मिस्टेक किया. देन आई अपोलोजाइज टू दी स्टूडेंट्स कि मैंने अभी अपना जो यहाँ पर अपना करियर शुरू किया, तो मैं क्लासरूम के केस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उस दौरान. आई रिपीट द लेक्चर, तो वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया, एंड स्टूडेंट आल्सो हैड अ ग्रेट लाफ एट इट. सो इट वाज मोर ऑन अ लाइटर साइड विद द स्टूडेंट्स. ओके. अगर वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई ऐसा एडवाइस देना चाहे स्टूडेंट्स को, लास्ट एडवाइस आपके अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, लाइक जिनसे स्टूडेंट का करियर ग्रोथ बहुत? Enjoy your study in SRMU. Okay. Yes, they should enjoy study. जो हम लोग अपने करियर में नहीं कर पाए, बिकॉज वी डिडंट हैव दोस मेनी ऑप्शंस. यहाँ पर इतना कुछ है करने को. मैंने आपसे बताया वो क्लब्स के बारे में बताया, वो एक्टिविटीज जो हम लोग ईयर एंड पे करते हैं, कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन में हम लोग बच्चों को क्लासरूम टीचिंग से हटा करके वो सारी चीजें कराते हैं. इट्स मोर ऑफ अ फन. लर्निंग एंड स्टडिंग इज फन इन एसआरएमयू. Enjoy it, chase your dreams, and definitely those dreams will come true. Okay. So the last is, आप इस पॉडकास्ट के बारे में क्या फीडबैक देना चाहेंगे? लाइक आपको कैसा लगा? It was a thrill. It was thrill and enjoyment. I enjoyed doing this podcast, and hopefully, if this podcast serves the purpose, I would like to come back again later on at some other time to share some more experiences as I grow with SRMU. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts. I think ये जो लास्ट एडवाइस थी, ये हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए अपने लाइफ में. So thank you so much for joining us today. Thank you so much. I'm really honored and obliged to be a part of this podcast. Okay. Thank you so much, everyone, for watching this episode. If you like this episode, don't forget to like, share, comment, and subscribe.